Hello everyone. Today is the Q&A session number 4 from the chapter of electric potential and capacitance. And in the today's session we will be solving two questions. The first question is written on the board, and the question is a positively charged particle. This is basically it's a particle. It's a positively charged particle of 1 coulomb accelerates in a uniform electric field of 100 volts per meter. The particle starts from rest on an equipotential surface of 50 volt. After t is equal to 0.002 seconds, the particle is on an equipotential plane of 10 volts. The distance traveled by the particle is, there are 4 options, so you have to select the right one. सो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है कि आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ हैविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is accelerating in a uniform electric field of 100 volts per meter. This particle is starting from rest on an equipotential surface of 50 volt, and after time, that is 0.002 second, this particle is on another equipotential plane of 10 volts. Now equipotential surface या plane क्या होता है? It is a surface or a plane where all the points on that particular surface or plane are having the same potential. ठीक है? तो ये particle जो है, it is moving from one equipotential surface having a potential of 50 volt to another equipotential this plane of 10 volts. ठीक है? So इस केस में what we have to find the work done. First thing is what we have to do is we have to find the work done in moving this charged particle from this equipotential surface, ठीक है, or you can say a plane, ठीक है, to the another equipotential surface or plane. So work done in moving a charged particle from one equipotential surface, या उसको हम प्लेन भी कह सकते हैं, और प्लेन to another equipotential surface or plane, ठीक है, is given by minus q delta v. ये formula I think everybody must be knowing about this formula, that is W is equal to minus q delta v, where delta v is the difference in the value of the potential of the two plane or surface. So in this case work done कितना हो जाएगा मेरा, which is equal to minus q की वैल्यू हमको दी हुई है 1 कूलम है, डेल्टा v कितना हो जाएगा. Now this particle is moving from this equipotential surface having the potential of 50 volt to another equipotential plane having a potential of 10 volts. So ये हो जाएगा 10 minus 50. Delta V will be equal to 10 minus 50 हो गया. So this is equal to minus 1 कूलम, ये हो जाएगा minus 40, which is equal to 40 joules. ठीक है? This is the work done in moving a charged particle from one equipotential surface, or you can say plane, or plane, to another equipotential surface or plane, is given by minus q delta v, that is W is equal to minus q delta v. This is the formula which I have used in order to calculate the work done in moving this particle from one equipotential surface to another. अब एक और फॉर्मूला है, work done is also equal to q e into d. ठीक है, QE क्या है, दिस इज दी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, अब फोर्स कितना हो गया यहाँ पर, Q इंटू ई हो जाएगा, एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। सो हमारा Q की वैल्यू हमको दी हुई है 1C, E की वैल्यू हमको दी हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर है, और D हमें निकालना है, और वर्क डन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q E D, Q इंटू E इंटू D, वेयर E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, Q इज द चार्ज एंड D इज द डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से मेरी जो D की वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमने वर्क डन के जो दो फॉर्मूलेज हैं, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी, वो यूज किया पहले इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to move this particle from this equipotential surface having a potential of 50 volt to the another equipotential surface having a potential of 10 volt, ठीक है। तो यहाँ से हमने वर्क डन निकाल लिया, और उस वर्क डन को फिर हमने क्या किया, नाउ वी आल्सो नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू D। तो यहाँ पर मैंने W निकाल लिया है, Q हमको पता है, E हमको E की वैल्यू हमको दी हुई है, सो एंड सो the value of D is equal to 40 divided by 100 which is equal to 0.4 meter, ठीक है। So the distance traveled by the particle is equal to 0.4 meter and the option A is the correct answer, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। The second question is an infinite number of charges an infinite number of charges an infinite number of charges are placed along the x-axis, are placed along the x-axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8 and so on, ठीक है, up to infinity. Find the infinite number of charges of magnitude Q, of magnitude Q are placed along the x-axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 8. Can also write x is equal to 16, ठीक है, and so on up to infinity, ठीक है। Find the value of potential and electric field at x is equal to 0, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी विल जस्ट ड्रॉ डायग्राम हियर। यहाँ पर दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका दिस इज द पॉइंट वेयर x is equal to 0। तो यहाँ पर जो चार्ज प्लेस किए गए हैं 1 है, ये 2 हो जाएगा, 3 मैं 4 बना देता हूँ ऐसे करके 1 2 4 एंड देन 8 आएगा, 16 आएगा इसी एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर जो चार्जेस प्लेस किए गए हैं वो Q है, Q है, Q है एंड सो ऑन। That is an infinite number of charges of magnitude Q are placed along the x-axis at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, x equal to 8, x equal to 16 up to infinity.
तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस विच आर प्लेस्ड along the x axis, और हर एक चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो q है, एंड दीज आर ऑल द पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा एट दिस पॉइंट दैट इज x इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ठीक है। सो अब ये जो चार्ज है q विच इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 1। जो यहाँ पे 2 है ये हो जाएगा q बाई 2 हो जाएगा। जो यहाँ पे एट x इक्वल टू 4 वहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 4। सो इन दिस वे जितने भी चार्जेस हैं जो आपके x एक्सिस के अलॉन्ग जो है प्लेस किए गए हैं उनका पोटेंशियल the potential at x is equal to 0 will be equal to the potential due to the individual charges which are placed along the x axis, ठीक है। Now the charges which are placed along the x axis are infinite, ठीक है। So यहाँ पर हर एक चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो हम ऐड करेंगे। See, we will be adding the potential due to all the charges which are lying along the x axis, and that will be equal to the potential at the this point that is x equal to 0, ठीक है। तो जो पोटेंशियल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे पोटेंशियल at x is equal to 0 due to infinite charges along the x axis, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका q हो गया, ठीक है। एंड ये हो जाएगा मेरा ये मैंने कॉमन ले लिया है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 1 फॉर दिस चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1, ठीक है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो एट दिस पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 0 वो होगा आपका ये। फिर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज q एट x इक्वल टू 2 एट दिस पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू 1/2 then plus 1 by that is the potential due to this charge q which is placed at x is equal to 4, ठीक है। at this point that is x equal to 0 will be equal to 1/4 plus so on up to infinity, ठीक है। ये हो जाएगा। so we will be adding up all the potential, we will be adding up all the potential due to the this individual charge, ठीक है ना, at this point that is x equal to 0। हर एक चार्ज का जो पोटेंशियल है at the point x equal to 0 will be added up। तो ये हमारा जो है this will be the total potential at x equal to 0 due to the infinite charges along the x axis। let us say इसको हम लोग v लिख देते हैं, v x is equal to 0। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, v x is equal to 0, this is equal to q divided by 4 pi epsilon naught, और ये हो गया मेरा एक हमारा सीरीज है 1/1 plus 1/2 plus 1/4 इस प्रकार से 1/8 आएगा एंड 1/16 आएगा। नाउ ये जो सीरीज है ना, दिस इज द इनफाइनाइट जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्या होती है? जीपी सीरीज होती है जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है आपका a, तो सेकेंड टर्म आपका ए आर होता है, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर होता है, फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा ए आर क्यूब एंड सो ऑन। वेयर आर क्या है? आर इज द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स आर विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द nth टर्म डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ये, अच्छा आर की यहाँ पे वैल्यू हमें अगर निकालनी है इस
एन इनफाइनाइट सीरीज की, तो आर कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द nth टर्म, लेट अस से आई एम टेकिंग दिस, लेट अस से द थर्ड टर्म क्या है 1/4 हो गया, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग क्या है ये वाला 1/2, सो आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। या आप कैसे भी ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस आर इज इक्वल टू, लेट अस से इफ आई एम टेकिंग दी the value of the nth term, let us say I am taking the second term, तो second term में हो जाएगा value of the second term divided by the value of the first term which is equal to 1/2, तो यहाँ पर जो common ratio की value आई है that is equal to 1/2, r is equal to 1/2, and now the sum of the infinite GP series is given by a divided by 1 minus r, where a is the first term of that series, तो ये इस केस में जो सम आ जाता है वो यहाँ पे फर्स्ट, इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, आर की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, तो माइनस 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है इस सीरीज की, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, इसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 2। तो हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज द पोटेंशियल एट x is equal to 0 due to all these infinite charges which are placed at x equal to 1, 2, 4, 16, 32, ठीक है ना, will be equal to 1/4 will be equal to q divided by 4 pi epsilon naught into 2, इसकी वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो वैल्यू है दैट इज द पोटेंशियल एट x equal to 0 due to all the infinite charges which are placed on this x axis will be equal to 2q divided by 4 pi epsilon naught। अब हमारा E की वैल्यू, E क्या होता है, the value of the this electric field at x equal to 0 that is equal to क्या होगा 1/4, आपको ये फॉर्मूला पता है हमें कि the value of this electric field is given by 1/4 pi epsilon naught q divided by r square, where r is the distance of the charge, r is the distance between the charge and the set point, ये पॉइंट है हमारा x इक्वल टू 0 है, और तो इस केस में जो E की वैल्यू आएगी दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द दिस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस विच आर लाइंग अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ये चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगी बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, तो ये इस डायरेक्शन में, इसका भी जो है, इसका जो चार्ज इधर भी आएगा, इसका भी इधर ही आएगा, सो the value of this electric field at the point that is x equal to 0 will be equal to the sum of the electric field due to the individual charges at this point that is x equal to 0। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूंगा मैं, ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट ये जो चार्ज है विच इज प्लेस्ड एट x equal to 1, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर, तो 1/r को 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद में हो जाएगा आपको 1/2 स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा आपको 1/4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैंने कॉमन लिखकर ये कॉमन कर दिया, और ये तो ये आप देखेंगे ना, ये भी एक जीपी सीरीज आती है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आई विल बी राइटिंग इट हियर नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज अगेन एन दिस इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म a है, a इज इक्वल टू 1 हो गया, r क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू कोई भी दो, ये दो टर्म्स को मैं ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। आप किसी भी दो टर्म्स को ले लीजिए, अगर आप इसको ले लेंगे तो r विल बी इक्वल टू 1/8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4 का होल स्क्वायर, तो भी आपका आंसर वही आएगा, देख लीजिए आप, 1/8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आर है, इसका भी आंसर जो है आपका 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारी हो गई द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, so the sum of this infinite GP series will be equal to 1 divided by 1 minus 1/4, which is equal to 4 minus 1 3, ये ऊपर चला जाएगा, which is equal to 4/3, ठीक है। तो ये जो हमारी जो GP सीरीज है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हो गई 4/3, ठीक है। तो मैं अब इसकी जो आंसर मेरा आएगा E की जो वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 ड्यू टू द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर placed on the x axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, then 16, 32 up to the up to infinite. So ये आपका हो जाएगा q 4 pi epsilon naught, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा जो हमारी उस जीपी सीरीज का सम आया है 4/3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एंड सॉरी हाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज q डिवाइडेड बाई 3 pi epsilon naught. So the value of the, अब यहाँ पे मैं ये आंसर यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, सो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 3 pi epsilon naught, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्जेस ना of magnitude q which are placed at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 4, then x is equal to 8, 16, 32, 64 and so on. तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई at x is equal to 0, and this is the value of the potential at x is equal to 0 due to these infinite charges on the x axis. ठीक है, ये दो आपके आंसर्स आ गए, these are the two answers, ठीक है ये। So इस क्वेश्चन में द क्वेश्चन वाज वेरी इजी बिकॉज ये वी हैव सिंपली यूज द फॉर्मूलाज फॉर द पोटेंशियल एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हाउएवर द ओनली थिंग हियर वाज व्हिच वाज इम्पोर्टेंट वाज दैट यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी सीरीज। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी सीरीज का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू एस, दैट इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी सीरीज is given by a divided by 1 minus r, ठीक है, where a is the first term and r is the common ratio, ठीक है। तो वही ये फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने जो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की है। So this is all I have for this session number 4, and in the session number 5 we will be taking up a couple of questions again, and from the same chapter, that is electric potential and capacitance. So till then, have a nice day, bye.